and then we'll start our next unit. Okay, so I think we are at here. Three coins are tossed simultaneously. The probability of getting at least two heads. Okay, three coins आपको एक टाइम पे toss करने and you want probability of getting at least two head. मतलब दो से ज़्यादा आपको head चाहिए. So possible values are two head and three head. क्योंकि at then only three coins are tossed. So if you consider all the sample space elements in all the elements in the sample space of this three coin toss, so those elements are like this. In one trial you may get H, all three are head, two head, one tail, two head, one head, two tail. Okay, with this sequence, all three tail, two tail, one head, like that. Okay, so these are all possible outcomes in the sample space. Now just identify the elements where you get the at least two head. So here you will get at least two head, three head total. यहाँ पे भी here you will get at least two head. In this case also you will get at least two head. यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि एक ही हेड है. यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है. यहाँ पे in this case also you will get at least two head. So total there are four items where you will get the four where you will get the at least two head out of the 8. Therefore your probability is 1/2. So this is wrong. Your answer is 1/2. Okay. And now come to the next question. There are 6 married couples in a room if 2 persons are chosen at a random. Okay, तो यहाँ तक पहले complete कर लेते. There are 6 married couples in a room, so total there are 12 persons. Okay, so from this 12 persons we have to select 2 randomly, है ना. So 12C2, this is the way. In these many ways you can select those 2 persons randomly. या अभी मैंने morning के session में भी explain किया था. Okay, so these many ways are there to select this 2 person from the 12 persons. But what is the condition? We have to find the probability that they are of different sex. So you want one to be male and one to be female. So as there are 6 married couple, so the total there are 6 males and in total there are 6 females. So your probability becomes 6 into 6. Okay, male into female upon the total elements in the sample space, which are 66. So your probability is 6 upon 11. I think यहाँ तक हमने मॉर्निंग में ही कंप्लीट किया था. So let me start from now next question. A ball is drawn from a box containing 6 red, 4 white and 5 black. So you can see here there is one box which contains 6 red, 4 white and 5 black. Determine the probability that it is not red. Determine the probability that it is not red. कैसे करोगे बोलो. Solution is there, but you think in your way. Determine the probability that it is not red. It is not red. हाँ? बोलो. It is not red. कैसे करोगे? Anyone? White and black balls only. It is not red means it must be white and red. White and black. हाँ, it must be white and black. तो एक वे क्या होगा आपके पास? You can consider the union. Okay, white or black. Not red means it may be white, it may be black. तो और ये आएगा वहाँ पे, है ना? White or black. So W union B. That formula we know. Probability of W plus probability of B minus probability of their intersection. Okay. हाँ, ये एक वे होता है, बट इससे भी एक सिंपल वे आपको मैं देता हूँ. क्या है वो? नॉट रेड कैलकुलेट करना है तो आप पहले रेड कैलकुलेट करो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड? फर्स्ट टेल मी व्हाट इज द. हाँ, 6 रेड बॉल है, टोटल कितने? 15. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल. सो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस. ये आपको पता है ना प्रोबेबिलिटी में. अगर आपको कॉन्वर्स पार्ट कैलकुलेट करना है तो यू कैन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1. तो ये सबसे इजी वे होता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड इज 6 अपॉन 15. सो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या आएगी? 1 माइनस ऑफ दैट, है ना. जिससे सक्सेस होता है तो फेल्योर क्या होता है? 1 माइनस सक्सेस, लाइक दैट. ओके, एंड हियर यू कैन चेक दिस अप्रोच ऑल्सो. मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ बट क्योंकि जरूरत नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की भी. ओके, ये हो गया था. नेक्स्ट, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है.
a problem in a statistics is given to, ये important question है, given to 3 students ABC, whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4. Okay, तो basically क्या given है, probability of solving the problem by student A is given, which is 1/2. Probability of solving a problem by student B is 1/3 and by student C is 1/4. So we have given the probabilities of solving that problem by student A, B and C respectively. Question क्या है? The probability that all of them can solve the problem. All of them can solve the problem. तो करना क्या है calculate? All of them can solve the problem. All together can solve the problem. Means what? Means what? Can anyone tell me this question in terms of mathematics? कैसे आप इसको लिखोगे mathematics में? All together have to solve the problem. This is the question. All together have to solve the problem. Have to solve the problem. Union B, Union C. Union आएगा या intersection आएगा? Intersection. हाँ, अगर उनको प्रॉब्लम ही सॉल्व करना था तो ये ऑल ऑफ देम का मीनिंग ही नहीं रहता ना. एट द एंड अगर आपको बस ये मैटर करता है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, है ना, ए करे बी करे, दैट डजंट मैटर, यू जस्ट वांट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम? उस क्वेश्चन में फिर आप आइदर ए आइदर बी और आइदर सी से जा सकते हो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको बस ये चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, ए करे बी करे सी करे, दैट डजंट मैटर, तो उस केस में आप यूनियन से जा सकते हो, क्योंकि तीनों में से कोई भी एक कर लेगा तो भी चलेगा, दो करते तो भी चलेगा, तीनों करते तो भी चलेगा. क्लियर? बट यहां पे उन्हें पर्टिकुलरली बोला है कि ऑल टुगेदर हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब तीनों को ट्राई करना है, तीनों को सॉल्व करना है मिलके. सो देयरफॉर वी हैव टू कंसीडर देयर इंटरसेक्शन. ओके, अब ये भी वर्डिंग में मैं कुछ चेंज करूंगा फाइनल एग्जाम में, टुगेदर ऐसे कुछ वर्ड में ऐड करूंगा सो दैट इट विल नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन. Okay, so it become probability of A intersection B intersection C all together have to solve the problem. So can you tell me what is this value? एक रिजल्ट मैंने आपको दिया था. In which case we can write this intersection in terms of product. What is the condition for this? Huh? Independent event. हाँ, if both event are independent then you can consider their intersection in terms of product. यहाँ पे आप देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय ए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय बी, whether they are related, whether they are dependent. ऐसा कुछ बोला है कि उन्होंने ए सॉल्व करा है तो बी को सॉल्व होगा नहीं, बी सॉल्व करा है तो ए को सॉल्व होगा नहीं. इधर एनी रिलेशन बिटवीन दोस टू स्टूडेंट्स? No, sir. No relation. Okay, so therefore all these three events are independent, hence their probability become their product. So just take their product, that will be the final answer. Okay, अभी जो केस में आपको एक्सप्लेन कर रहा था ना कि अगर मैं बस इतना देता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, मुझे बस प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, ए करे बी करे सी करे, दैट डजंट मैटर. तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला, आप यूनियन से जा सकते हो. इज देयर एनी अदर स्मार्ट वे टू हैंडल दिस क्वेश्चन? आप बोलो, आप थिंक करो और मुझे बोलो कि आपके पास क्या वे इसको सॉल्व करने का. बोलो. यस, ऐसे क्वेश्चन में ना जनरली आप ऐसे हैंडल करो इसको कि इसका काउंटर पॉजिटिव कैलकुलेट करो या कॉन्वर्स पार्ट कैलकुलेट करो. आपको प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए, मतलब क्या नहीं चाहिए. अगर आप नॉट सॉल्व कैलकुलेट करते हो, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय ए बी एंड सी, तीनों से नहीं हो रहा है, अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हो, सो इट्स कॉन्वर्स, कैन आई टेक इट्स कॉन्वर्स एज दिस? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं ये पार्ट कैलकुलेट करता हूं कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व बाय ए को भी सॉल्व नहीं हो रहा है, बी को भी सॉल्व नहीं हो रहा है, सी को भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तीनों को भी सॉल्व नहीं हो रहा है, ए नॉट सॉल्व बाय ए, नॉट सॉल्व बाय बी एंड नॉट सॉल्व बाय सी, तीनों से भी सॉल्व नहीं हो रहा है. अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता हूं
देन व्हाट इज इट्स कॉन्वर्स या व्हाट इज इट्स कॉन्ट्रा क्या बोलते हो आप उसको, व्हाट इज इट्स निगेशन बेसिकली, व्हाट इज इट्स निगेशन, क्या आएगा इसका निगेशन, तीनों में से किसी एक से सॉल्व हो रहा है, तीनों से सॉल्व हो रहा है, दोनों, Not solved. ओके. तो व्हाट इज इट्स निगेशन, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. समझ में आ रहा है इसको कैसे हैंडल करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं. आपको एट देन प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए था, वो कैलकुलेट करने से अच्छा है आप क्या करो, आप नॉट सॉल्व बाय ए, नॉट सॉल्व बाय बी, नॉट सॉल्व बाय सी, वो कैलकुलेट करो. मतलब प्रॉब्लम नॉट सॉल्व बाय ए बी एंड सी, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, फिर उसका जो निगेशन होगा ना वो होगा प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रहा हूं समझ में तो आ रहा है. यस, यस और नो. Yes, sir. हाँ. So, can you tell me what is the meaning of this? A complement, B complement and C complement. Anyone? इसको मैं कैसे रीड करूंगा? How you read this part? Tell me fast. How you read this part? A complement means what? A का negation solved by A, not solved by A ना. कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा ए का, सॉल्व बाय ए इज द एक्चुअल स्टेटमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा उसका, नॉट सॉल्व बाय ए, करेक्ट ना. Yes, sir. हाँ. बी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट सॉल्व बाय बी, सी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट सॉल्व बाय सी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देयर इंटरसेक्शन, नॉट सॉल्व बाय ए बी एंड सी. कैन आई टेक दिस, कैन आई टेक दिस और नॉट. तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है, Yes, sir. हाँ इसका मीनिंग क्या हो रहा है, नॉट सॉल्व बाय ए को भी नहीं हो रहा है, बी को भी नहीं हो रहा है और सी को भी नहीं हो रहा है. ये अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ना तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा दैट बिकम द क्वेश्चन, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. तो वही मैंने किया है. बट अगेन हियर यू कैन सी दिस नॉट सॉल्व बाय ए, नॉट सॉल्व बाय बी, दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, तो दे कम्स इन अ प्रोडक्ट. ओके, ए गिवन है तो ए कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस ऑफ 1/2, बी गिवन है तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस 1/3, सी गिवन है तो सी कॉम्प्लीमेंट होगा 1 माइनस 1/4, फिर उसको 1 से सब्ट्रैक्ट करो, दैट गिव्स यू प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. नन विल बी सॉल्व का निगेशन, निगेशन मतलब ये 1 माइनस होता है, इस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व एंड योर फाइनल आंसर इज 3/4. क्वेश्चन समझ में आ रहा है. मैं आपको मे भी 2 केसेस में दूंगा एग्जाम में, इतना डिफिकल्ट करने से अच्छा कि 2 केसेस में दूंगा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. मैंने यहाँ पे 2 केसेस एक्सप्लेन किए. ऑल टुगेदर हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. तीनों को मिलके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, तीनों करे, 2 करे, 1 करे, दैट डजंट मैटर. ओके, वेदर दिस 2 क्वेश्चंस आर क्लियर नाउ. यस, क्लियर हो गए क्वेश्चंस. ओके. Yes, sir. Okay. And I think that same question is there. The probability that A can solve a problem, B can solve a problem. If both attempt the problem, then probability that problem gets solved. Get solved calculate कभी हमेशा कैसे करना है, not solved by A, not solved by B. इसलिए कंसेप्ट याद रखो, यही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है. एट देन प्रॉब्लम सॉल्व करना था, ए सॉल्व करे, बी सॉल्व करे या दोनों मिलके सॉल्व करे चलेगा, बट मुझे प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी थी. तो मैं क्या करूंगा, नॉट सॉल्व बाय ए एंड नॉट सॉल्व बाय बी कैलकुलेट करूंगा. मतलब प्रॉब्लम ना ए से सॉल्व हो रहा है ना बी से सॉल्व हो रहा है, ये मैं पहले कैलकुलेट करूंगा, फिर इसका निगेशन लूंगा, दैट निगेशन बिकम द प्रॉब्लम गेट सॉल्व. तो वही मैंने किया है. सो इट इज 1 माइनस probability of A complement intersection B complement. Again they are independent, so you can write in terms of product. So A की probability 2/3 है तो complement क्या आएगी 1 minus 2/3, B की 3/4 है तो complement क्या आएगी 1 minus 3/4. So your final answer is 11/12. Correct? Okay. ये भी हुआ था, शायद ये भी लिया है हमने. Next, A and B are 2 events. Probability of A is given, B is given. यूनियन की भी गिवन है, बी बाय ए की कैलकुलेट करनी है. तो फॉर्मूला याद रखो, मतलब या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्सप्लेन किया था मॉर्निंग में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड, व्हेन इवेंट ए इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. सो इट्स फॉर्मूला इज देयर इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. सो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपके पास है क्योंकि आपके पास यूनियन का फॉर्मूला है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
minus their intersection. So their intersection become union. ये आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा. So intersection क्या आएगा? Probability of A plus probability of B minus their union. Just put the values, you will get the answer. Clear? Clear हो गया question? Please reply me either in yes or no so that I can go to the next question quickly. Okay. Next, in a class, 40% students read statistics. So probability of reading a statistics is 40%. 15% read both statistics and mathematics. So 15% read both statistics and mathematics. So probability of reading both statistics and mathematics is 15%. And 25% read mathematics. So probability of reading mathematics is this. One student is selected at random. The probability that he read mathematics, if it is known that he read statistics, if it is known that he read mathematics. क्या करना है? Can anyone explain me here? What is the meaning of this question? बोलो. What is the meaning of this question? Anyone? Wrong आने तो आप try तो करो. Yes. What is the meaning of this question? Probability that he read the statistics if it is known that he already read the mathematics. Means what? क्या कैलकुलेट करना है? Can anyone explain me? बोलो. Conditional probability. Conditional probability. Okay, so let me take it separately. नहीं समझ में आ रहा था, मुझे बोलो प्रॉपर. ओके, यहाँ पे ही ले लेता हूँ. अभी करते हैं अच्छे से. हाँ, सो क्या गिवन है? 40% स्टूडेंट्स रीड स्टैटिस्टिक्स. So probability of reading statistics is equal to 40%. So 40 by 100 is nothing but 0.4. Done. 25% read the mathematics. So probability of reading mathematics is equal to 25%. So it is 25 by 100, that is 0.25. And 15% read both statistics and mathematics. So it is 50%. That is 0.15. Question क्या है? The probability that, find the probability that he reads statistics if it is known that he already completed the mathematics. Clear है ये? Are you getting this notation now? समझ में आ रहा है इसका मीनिंग क्या है? मैथमेटिक्स ऑलरेडी उसने रीड किया है, उसके बाद उसको स्टैटिस्टिक रीड करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. क्लियर? क्लियर और नॉट? मैथमेटिक्स उसने ऑलरेडी रीड किया है. आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड द स्टैटिस्टिक्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? देयर इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स. सो इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम माइनस देयर यूनियन एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एम. जस्ट पुट द वैल्यूज. ओके, सॉरी, इंटरसेक्शन गिवन ही है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. Intersection is given 0.15 upon m क्या है? 0.25. So that is your final answer. Okay. Question easy है, but आप उसको लेते कैसे हो? That is very important. Okay. So answer is 0.6. Next is A given है, B की given है, A union की given है, P by probability of A upon A by B की calculate करने. तो as it is formula based question है. So I will skip this now. Probability that A can hit the target. A can hit the target 3 out of 5. So probability that A can hit the target is 3 by 5. B can hit the target 1 out of 3. So probability that B can hit the target is 1 by 3. The probability that no one can hit the target. So not by A and not by B. So their intersection. ये आपको कैलकुलेट करना है. No one can hit the target. So not by A and not by B. Both are independent. You can replace this intersection in terms of product. So A की probability given है तो complement क्या आएगी? 1 minus 3 by 5. B की probability given है तो complement क्या आएगी? 1 minus 1 by 3. So your final answer is 4 upon 15. Clear? Yes? Yes or no? Clear हो गया ये question? बोलो जल्दी. Okay.
Yes. और यहाँ पे भी ये एक नोटेशन है. अभी जनरली मैं कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखता हूँ, बट कुछ बुक्स में या कुछ ऑथर्स ऐसे भी नोटेशन यूज करते हैं. सो मीनिंग इज सेम कॉम्प्लीमेंट. सो कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, आणि वो दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है. सो इफ दे आर इंडिपेंडेंट देन देयर इंटरसेक्शन इज रिप्लेस बाय देयर प्रोडक्ट, है ना. तो वही रिजल्ट अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं. सो ए की गिवन है तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी 1 - 1/2. बी की गिवन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी 1 - 1/3. सो योर फाइनल आंसर इज 1/3. ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है. ए यूनियन बी कैलकुलेट करना, एवरीथिंग इज गिवन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. आई थिंक डन. सो इतने सारे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने फ्रॉम दिस थर्ड सेक्शन. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी पार्ट. ओके, लेट मी